Hi guys, welcome back to my channel TU Scholars. We will be studying today the R Studio. The second part is already uploaded where we discussed about the assignment of variables. Right, I hope you all have visited that video. Now in that video I gave you insights about the variables and constants, right, and the coding of variables portion was almost over, and the constants were thoda sa I gave you idea. Now today we'll dive into the constants wala portion. Constant mein I told you about there are four types of constants, right? Numeric, string, logical and special, right? We'll be studying about how to code them in R today, all four of them, right? So before starting the video, subscribe to the channel if you are new to here, and if you are already there, then comment down below that we are new and we have already subscribed. Okay, so let me get the like button hit and let's start with the video, right? So starting off with the variables wala thoda sa recap. Like I told you that we give x's, y's and z's as our variables, and we give them values, and the values appear in our environment area, right? So thoda sa I tell you wo. Firstly we'll give x को value let's say 100, and for running you also know that we press control plus enter, not only the enter. So you can see here that x की value 100 is visible in our environments area. Now we will print it. We talked about the print command, right? We'll print brackets open and write x, control enter, then it will be getting printed in the console area. But if you don't want to write print bracket and all that, you just press your variable ka name, like here it is x, then just type the variable name and press control enter, then also it will get printed. It is the same. ठीक है. उसके बाद we also saw yesterday, sorry, in the previous video that print के बाद we did our class of की command and type of command, right? So let's see class की command. class of x हमने कैसे चेक करना है? ये वाली कमांड डाले क्लास ब्रैकेट वेरिएबल का नेम एंड प्रेस कंट्रोल एंटर, वहाँ पे आ जाएगा वो न्यूमेरिक का कैरेक्टर है. वी डिड इट येस्टरडे ऑल्सो, देन इन असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स वाली वीडियो ऑल्सो, एंड आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट थोड़ा सा, ताकि क्योंकि जो आज वाला कंटेंट है वो इससे रिलेटेड है, सो दैट यू आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड कहीं पे भी. क्लास ऑफ वी डिड, देन वी विल डू टाइप ऑफ वेरिएबल का नेम, कंट्रोल एंटर, इट इज़ डबल, राइट. नेक्स्ट talking about the string variables. string variables में we did greetings, right? greetings, and string variable के लिए I told you that हमें कोड्स लिखने होते हैं. तो string variable हमने greetings दिया, उसमें we'll write hello r. ठीक है, तो ये हमारा हो गया string constant, string variable. ये आ गया हमारा यहाँ पर, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्ट्रिंग वेरिएबल बन चुका है ग्रीटिंग्स के नेम से. अगर मैं ग्रीटिंग्स टाइप करूँगी, आई मीन प्रिंट करूँगी या टाइप करूँगी, तो वो हम मुझे कंसोल में क्या देगा? ग्रीटिंग्स है, एस नहीं दिया मैंने, तो हमें वो हेलो आर देगा जो हमारा वैल्यू है. ठीक है, उसके बाद प्रिंट कर लिया हमने. टाइप ऑफ भी चेक कर लेते हैं एक बार. आपको मैंने बताया था कल स्ट्रिंग कांस्टेंट के केस में जो टाइप ऑफ है और क्लास है वो सेम रहती है, कैरेक्टर ही रहती है. तो अगर आपने चेक करना है तो आप कर सकते हो, बाकी सेम ही होता है. ये स्ट्रिंग के केस में ये डिफरेंट नहीं होता, ओनली न्यूमेरिक के केस में डिफरेंट होता है. यू कैन सी इन द कंसोल एरिया टाइप ऑफ और क्लास का आंसर इज कैरेक्टर ओनली, दोनों केसेस में. ठीक है, उसके बाद टॉकिंग अबाउट द मेन कॉन्टेंट टुडे वाला, दैट आई टीच यू टुडे अबाउट लॉजिकल एंड स्पेशल कॉन्स्टेंट. ठीक है, एंड इनबिल्ट टू. इनबिल्ट का एक एग्जांपल भी डेड इन द लास्ट वीडियो, पाई का, आई टोल्ड यू, राइट. तो आज हम करेंगे लॉजिकल कांस्टेंट से स्टार्ट. न्यू लॉजिकल कांस्टेंट थ्योरी में आई एक्सप्लेन्ड यू येस्टरडे दैट लॉजिकल में लॉजिकल इज ऑल्सो कॉल्ड बुलियन कांस्टेंट, है ना, जिसमें ट्रू फॉल्स या येस नो की वैल्यूज होती हैं. आर में भी यूज ट्रू फॉल्स और टी और एफ ट्रू फॉल्स के लिए. ठीक है, logical constants
एंड मैंने ये हैशटैग क्यों लगाया है, टेल मी इन द कमेंट्स, इससे क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले लॉजिक करके एक हमारा वेरिएबल बना लेते हैं, वेयर विल राइट ट्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने ट्रू ऑल कैप्स में लिखा, आपको मैंने पहले भी बताया दैट ऑल कैप्स लिखो या सिर्फ टी लिखो, वो भी कैप्स में, तभी वो आइडेंटिफाई करेगा। जैसे ही मैंने लिखा TRUE कैप्स में तो वो ब्लू कलर टर्न हो गया, मतलब हमारा लॉजिकल कॉन्स्टेंट सही बैठ गया। तो हम आप देख सकते हो यहाँ पे लॉजिक करके वो ट्रू नेम वेरिएबल, अगर मैं अब लॉजिक करूँगी प्रिंट तो मुझे क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे है। उसके बाद आपकी इसकी क्लास और वो भी चेक कर सकते हो, क्लास और टाइप, क्लास ऑफ लॉजिक, कंट्रोल एंटर, इट इज़ लॉजिकल ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ ट्रू और फॉल्स की वैल्यू दिया तो वो लॉजिकल ऑपरेशन बूलियन ऑपरेटर में जाता है, ठीक है। हैंड टाइप ऑफ चेक कर लेते हैं, क्या है, लॉजिकल, राइट। उसके बाद हमारे आ गए लॉजिकल कॉन्स्टेंट गेट्स ओवर, यहाँ पर इतना सा ही पोर्शन है लॉजिकल का। विल गो टू स्पेशल कॉन्स्टेंट्स। स्पेशल कॉन्स्टेंट्स मैंने आपको कल बताए थे, 3 तरह के स्पेशल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कौन कौन से, नल, नॉट अ नंबर एंड इन्फिनिटी, राइट। इसके अराउंड ही हम आज सारा काम करेंगे। नल कांस्टेंट जो होता है उसके साथ पहले देखते हैं, हम पहले ए असाइन कर लेते हैं वेरिएबल फॉर नल कांस्टेंट। इसका जो आपने ये है ना, ये इसका फॉर्मेट याद रखना। जैसे हमने ट्रू का ऑल कैपिटल रखा था, नल में ऑल कैपिटल होता है, नॉट अ नंबर में एन फर्स्ट एन एंड लास्ट एन विल बी कैपिटल, ए विल बी स्मॉल, इन्फिनिटी में आई विल बी कैपिटल, रेस्ट एन एंड एफ विल बी स्मॉल, राइट। तो ये ऐसे ही रखना ताकि आपका एरर ना आए। सबसे पहले हमने नल कांस्टेंट नल वेरिएबल बना लिया, ए नेम से नल वेरिएबल बना लिया, देन विल डू बी से नॉट अ नंबर। ये भी आप देख रहे हो ब्लू टर्न हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, उसमें हम भी वेरिएबल बना रहे हैं फॉर दैट, ताकि हम अपना जो क्लास और टाइप ऑफ है वो चेक कर सकें, ठीक है। और सी हम बना लेते हैं इन्फिनिटी कॉन्स्टेंट। अब देखो मैंने INF लिखा तो उसने उठाया नहीं, क्यों? ब्लू नहीं हुआ क्योंकि मेरा आई कैपिटल नहीं है, राइट। अब देखो उन्होंने उसने उठा लिया ना INF, कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो हमारे तीनों बन चुके हैं वेरिएबल्स। अब इसकी क्लास ऑफ, टाइप ऑफ और प्रिंट करने की कमांड यू कमेंट डाउन, और उसका क्या आंसर आता है मुझे आप कमेंट्स में लिखना। जो सही आंसर देगा आई विल पिन, और अगर किसी ने आंसर नहीं दिया तो जो आपकी जो रिक्वेस्ट पूरी हो रही हैं तो इसका मेरे को कैसे रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, राइट। तो आप मुझे इसका आंसर देना। इसका आपने क्या क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, इसको आपने प्रिंट करके बताना है, इसकी कमांड क्या होएगी, इसकी क्लास बतानी है और इसका टाइप ऑफ बताना है, क्या आंसर आया इसका, यू कमेंट डाउन बिलो, राइट। उसके बाद गोइंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, इट इज़ इनबिल्ट कॉन्स्टेंट्स। इसका एक पोर्शन हमने कल कर लिया था, दैट इज़ पाई। जब हम पाई लिखते हैं तो हमें क्या आता है, वैल्यू आती है पाई की, जो चेंज नहीं हो सकती, हमें पता है। और मैंने आपको कल लेटर्स का भी बताया था, अगर हम कैपिटल में लेटर्स लिखेंगे तो क्या आएगा, हाँ सारे बड़े ABC आएगी, तो ये हमारे कंसोल एरिया में आ जाएगा। ये आपके डाउट आ सकता है ये सब कुछ यहाँ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था इन्वायरमेंट में वही चीज़ें आती हैं जो वेरिएबल होती हैं, जिसको हमने असाइन किया होता है एज अ वेरिएबल। जैसे हम जो ये सब करा हमने ABC, फिर ग्रीटिंग्स और लॉजिक, ये सारी हमने वेरिएबल्स असाइन किए हैं, वेरिएबल्स उनको बनाया है, तब वो इन्वायरमेंट में आ रहा है। बट जो ये है इसको हमने कोई असाइन नहीं किया, अगर इसको असाइन करें इसके आगे भी आप कोई भी वेरिएबल डाल के उसको असाइन कर दो, फिर आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। बट ये क्योंकि इनबिल्ट है, ये ऑलरेडी R को पता है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। इसको वेरिएबल बना के यूज़ करना है वो कर सकते हो, बट एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल लेटर्स के लिए स्मॉल लेटर्स में टाइप कर दो, कंट्रोल एंटर, ठीक है। उसके बाद मंथ नेम हमने देखा था, मंथ नेम सारे मंथ्स के नेम आ जाएंगे। मंथ एब्रीविएशन हमने देखा था,
मंथ एब्रीविएशन आ जाएगी। बट अब इसमें हमने न्यू क्या सीखना है कि इनको वेरिएबल्स बनाना है और इनकी फॉर एग्जांपल हमें सारे मंथ्स नहीं चाहिए, कोई एक या दो या कोई ऐसे मंथ्स चाहिए, तो वो कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनको पहले वेरिएबल बनाना सीखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि इसको हम वेरिएबल बना सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने इसको ले लिया ABC वेरिएबल हमने बना लिया बिग लेटर्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जब मैं ABC प्रिंट करूँगी तो मुझे सारे लेटर्स शो होंगे। समझ आया, ये डिफरेंस है बस, ठीक है। उसके बाद हमने अगर कराना है कि हमें सारे लेटर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बीच में से एक आधा लेटर चाहिए। फॉर एग्जांपल अब हम अपने DU स्कॉलर्स का नाम ले लेते हैं, हमें चाहिए D, ठीक है। तो अब हमने DU स्कॉलर्स का D कैसे प्रिंट करवाना है, उसके लिए हमें पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम R में यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो हम जैसे अब हमने यहाँ पे ABC उसको असाइन कर दिया और लेटर्स हमने बिग वाला कर लिया। लेटर्स हम जब टाइप करेंगे उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल के लिखेंगे। D करना है हमने प्रिंट, तो हमें पता है कि D की वैल्यू पोजीशन कौन सी है, 4th, तो हम 4 लिखेंगे तो हमें प्रिंट क्या मिलेगा, D, ऐसे, ठीक है। हम ABC से भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हमारा ABC वेरिएबल बन रखा है, उसकी पोजीशन से भी ये आ रहा है या नहीं चेक हो जाएगा। देखो आ गया ना। तो ये डिफरेंस, आपको अगर ये सारा टाइप नहीं करना तो आप एक वेरिएबल, अभी तो मैंने XY भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने XY ऑलरेडी ले रखा था, X ले रखा था, Y नहीं लिया था, हम उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। आप इसमें अब आपका इसमें कमेंट आपने क्या करना है कि जो आपका नेम का फर्स्ट लेटर है वो आपने प्रिंट करना है और मुझे नीचे बताना है कि आपने कैसे किया, ठीक है। तो कमेंट योर इनिशियल ऑफ नेम, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर एग्जांपल मंथ के साथ करना है, तो मंथ के साथ भी सेम ही होगा। जैसे हमने ऊपर मंथ नेम लिया था, उसको भी हम, अब मैं Y के साथ आपको बता देती हूँ। मंथ नेम को हम कर लेंगे, वेरिएबल बना लेंगे मंथ नेम, कंट्रोल एंटर। ऑल्सो आप यहाँ देख सकते हैं एनवायरनमेंट में ये सारा नहीं लिख रहा, डॉट डॉट जा रहा है। ये मैंने आपको कल बताया था, ये कॉलन का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, राइट। तो ये यहाँ पे बता रहा है कैरेक्टर्स हैं जो 1 to 26 सीक्वेंस में कैसे हैं, ABCD के फॉर्म में। वैसे ही ये कैरेक्टर है, Y वेरिएबल कैरेक्टर है जो 1 to 12 में जा रहा है, क्या, जनवरी फरवरी मार्च। तो यहाँ आप जब ऐसे कर्सर अपना लेके जाएंगे कैरेक्टर के ऊपर तो ये आपको सब कुछ दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या कंटेन करता है ये, ठीक है। तो अब हमने Y कंसिडर कर लिया हमारा वेरिएबल जिसमें हमारा मंथ नेम है। तो अगर हमने प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल जून मंथ प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम या तो लिखें मंथ डॉट नेम और पोजीशन दें उसे 6th, तो हमारा जून आएगा, या हम Y लिखें और ब्रैकेट दें 6, कंट्रोल एंटर, तब भी जून आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। ऐसे ही आप एब्रीविएशन के साथ भी कर सकते हैं। उसमें आप कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल Z ले लेते हैं, मंथ डॉट ABB, कंट्रोल एंटर, फिर हमारा Z अलॉट हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये ऐसे ही आ गया जैन फेब मार्च की फॉर्म में। अब हमने Z से हमने कौन सी पोजीशन चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें 10th मंथ चाहिए, तो क्या आ गया, अक्टूबर आ गया। अब आप चाहे मंथ डॉट एब्रीविएशन करके उसको ऐसे 10 दो, चाहे वेरिएबल बना के दो, वो सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का कांस्टेंट वाला पोर्शन ओवर, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं आपको इसकी कमांड्स का और कंसोल विंडो का और एनवायरनमेंट का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। कमेंट डाउन अगर आपको कोई दिक्कत है। ऑल्सो कमेंट्स में बताओ ये दोनों का आंसर, इसकी प्रिंट क्लास टाइप ऑफ स्पेशल कॉन्स्टेंट्स एंड आपके इनिशियल नेम का लेटर जो आपने लेटर्स वाले कमांड से यूज़ करके प्रिंट करवाया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेंगे, हमारा सबसे ज़रूरी काम तो सेव करना ही है। प्रेस Ctrl+S, देन गो टू योर डायरेक्टरी, मैंने C ड्राइव में सेव किया था R से। तो यहाँ पे हमने कल किया था असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स, आज हमने कर लिए कॉन्स्टेंट्स, राइट। इसको सेव कर लो और ये आपके सिस्टम में सेव हो चुका है। उसके बाद ये तो आप दो चीज़ें मुझे आंसर करके दोगे,
ये क्रॉस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये मैंने आपको लिख के दिया है तो आपको चलो हाईलाइट हो गया ना, आपने क्या क्या कमेंट करना है। ये 2 चीज़ें आपने मुझे कमेंट करके बतानी है, मैं देखूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। आप कुछ रिटर्न में देना चाहेंगे तो यही दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको सब कुछ समझ आया है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑल्सो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी टेलीग्राम पे, जो इस कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड ही होगा जितना हमने अभी 2 वीडियोस में लर्न किया है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। और कोई भी उसको इग्नोर मत करना दैट हमने कर तो लिया, आप साथ साथ करोगे तभी आपका हाथ बैठेगा बेसिक्स पे, तभी आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे जो कि एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि सबका भला हो।